اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ابھی آرڈر کریں، کم پیسے میں ہمارے ساتھ بزنس شروع کریں۔ بھارت بھر سے ڈسٹریبیوٹر اور ہول سیلر بننے کے لیے ابھی کال کریں 9579591975۔ تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ ہربل رائٹ لائے ہے آپ کے لیے مردانہ قوت کا علاج، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ اس کے علاوہ آپ کے جسم میں کسی جگہ پہ درد ہو، آپ ہم سے دوائیاں حاصل کر سکتے ہیں دیش ودیش میں۔ اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنٹی پلس دیسی شفا لائے ہیں مرد اور عورتوں کے تمام گپت روگوں کا علاج۔ پہلی خوراک میں حیرت انگیز اثر دیکھیں۔ اگر آپ ہم سے انڈیا اور انڈیا سے باہر دوائیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ تھینک یو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں، تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر خبر، ہر ویڈیو آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکیں۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجئے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا جاتا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے، ہر دن یا ہفتے، مہینے میں ایک بار ہی صحیح، لیکن پابندی سے آپ 200، 500، 1000 جو بھی مدد کر سکتے ہیں کیجئے اور چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ آئیے ناظرین، پہلی بڑی خبر مہاراشٹر کے ممبئی سے ہمارے رپورٹر مفتی ابو ایوب نے بتایا کہ مہاراشٹر کا سیاسی ناٹک ابھی ختم نہیں ہوا، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ یہ خبر سنا رہا ہوں کہ شیو سینا نے آخر باغیوں کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے اور اعلان کیا کہ لوٹ کے آ جا میرے میت، ممبئی آ جاؤ۔ شیو سینا نے کہا کہ ممبئی آ جاؤ، اگاڑی سے الگ ہونے کی پیشکش کی، اور انہوں نے سنجے راؤت نے یہ بھی کہا کہ ہمارے ممبران اسمبلی کا، ہمارے ودھایکوں کا اغوا کر کے، کڈنیپ کر کے گوہاٹی میں، آسام میں رکھا گیا ہے۔ وہیں پر انہوں نے کہا کہ ان میں 21 تو ہمارے کانٹیکٹ میں ہیں۔ اجیت دادا پوار کا بڑا بیان آیا ہے کہ باغیوں کے پیچھے بی جے پی کا ہاتھ نہیں، جبکہ شرد جی پوار کا بیان آیا ہے کہ بی جے پی کا ہاتھ ہے۔ وہیں پر مہاراشٹر کے پردیش ادھیکش کانگریس کے نانا پٹولے نے کہا ہے کہ مہا وکاس اگاڑی کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ کانگریس کے بہت ہی بڑے قد آور نیتا ملک ارجن کھڑگے نے کہا کہ بی جے پی مہاراشٹر میں بھی ماحول کو خراب کر رہی ہے اور عدم استحکام پیدا کر رہی ہے۔ وہیں پر ممتا دیدی نے بڑا بیان دیا کہ مہاراشٹر میں بی جے پی جمہوریت کو کمزور کر رہی ہے۔ باغیوں کے لیڈر ایک ناتھ شندے کا بڑا بیان آیا ہے کہ ہم ایسے نہیں گئے ہیں، ہمیں ایک بڑی پارٹی کی، قومی پارٹی کی، نیشنل پارٹی کی حمایت، سپورٹ اور سمرتھن ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس بڑی پارٹی نے ہم سے کہا ہے کہ کہیں بھی کسی بھی چیز کی ہم کمی نہیں ہونے دیں گے، بس تم اس طریقے سے کام انجام دو۔ یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آخر راجنیتی کتنا گھٹیا کھیل بن چکی ہے۔
आइए नाज़रीन, दूसरी बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने। जी हाँ, आप जानते हैं कि प्यारे मुल्क हिंदुस्तान में जिस तरीके से मुसलमानों पर अत्याचार, जुल्म और मुसलमानों पर एकतरफा कार्रवाइयाँ और हुकूमत का जुल्म जो पूरी दुनिया अब देख रही है, और जिस तरीके से बीजेपी सरकार ने अपने दोनों शैतानों को गिरफ्तार नहीं किया और करोड़ों मुसलमानों के जज्बात से खिलवाड़ किया, ये तमाम चीज़ें दुनिया तक पहुंच रही है और दुनिया हम पर थूक रही है। लेकिन अभी बड़ी खबर ये आ रही है कि अमेरिका में अमेरिकी कानून साज इल्हान उमर ने वहाँ बाकायदा अपनी कांग्रेस में हिंदुस्तान के मुखालिफ करारदाद पेश की और उन्होंने महकमे खारिजा से हिंदुस्तान को मजहबी आज़ादी की संगीन खिलाफ वर्जी करने वाला मुल्क करार देने का मुतालबा किया। यानी इल्हान उमर ने वहाँ पर यह कहा कि हिंदुस्तान को मजहबी आज़ादी छीनने वाला सबसे ख़तरनाक मुल्क माना जाए, क्योंकि हिंदुस्तान में जिस तरीके से ख़ास तौर से मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, मॉब लिंचिंग से लेकर शरीयत में दखल अंदाजी और उनकी मजहबी आज़ादी को छीना जा रहा है, और हुकूमत पूरी तरीके से तमाशबीन बनकर आतंकियों के हौसलों को, मॉब लिंचिंग करने वालों के हौसलों को बढ़ा रही है। इसलिए इल्हान उमर ने वहाँ अमेरिका में कानून साज कांग्रेस में उन्होंने बाकायदा हमारे इस प्यारे मुल्क के ख़िलाफ़ करारदाद पास करने का मुतालबा किया, डिमांड किया, जो हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है और बड़ी बुरी बात है। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। आप जानते हैं कि एक पूरा ग्रुप है जो अलग अलग तरीके से मुसलमानों को परेशान करता रहता है। बीच में बुल्ली भाई ऐप और सुल्ली डील जैसी 2 ऐप आई थी जिसमें मुसलमान औरतों की इज्जत से खिलवाड़ किया जा रहा था, मगर क्या करें, फ़िलहाल उन तमाम मुलज़िमीन को ज़मानत मिल गई है। नीरज बिश्नोई, ओमकारेश्वर और नीरज सिंह, इनको ज़मानत मिल गई है। बस बैरून मुल्क वो सफ़र नहीं करेंगे, ये उन पर पाबंदी लगाई दी गई और हर माह पुलिस स्टेशन में हाज़िरी देने के उन्हें आदेश दिए गए हैं। जी हाँ, आप जानते हैं कि अलग अलग तरीक़े से जो मुल्क में मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, मुस्लिम महिलाओं को भी निशाना बनाया जा रहा है। आइए नाज़रीन, इस वक्त मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से हमारे रिपोर्टर हाफिज़ अब्दुल रशीद साहब ने बड़ी खबर भेजी है। जी हाँ, मध्य प्रदेश की ये बड़ी खबर है, बल्कि मुल्क की बड़ी खबर है। आपने देखा होगा कि कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया के ज़रिए से और मुल्क की आतंकी गोदी मीडिया के ज़रिए से जो बस बहाना तलाश करती है इस्लाम को बदनाम करने का, तो मुल्क की आतंकी गोदी मीडिया की जानिब से भी एक झूठी खबर चलाई जा रही थी। तब्दीली मज़हब के नाम पर इस्लाम को बदनाम करने की साजिश की जा रही थी। आखिर ये साजिश नाकाम हो गई। वो जो 18 मुसलमानों की जानिब से हिंदू मजहब इख्तियार करने का मामला था, वो सब फर्जी निकला। जमीयत उलमाए हिंद ने उसकी पोल खोल दी। और मैं आपको बता दूं कि रतलाम जमीयत उलमा हिंद के सदर हाजी मोहम्मद हारून ने इस सिलसिले में बाकायदा पूरी जानकारी देते हुए ये कहा है कि ये लोग मुसलमान थे ही नहीं, बस मुसलमानों का भेष बनाकर बाकायदा दरगाहों, मस्जिदों, मुस्लिम मोहल्लों में भीख मांगा करते थे। वो लोग मुसलमानों का रूप जाहिर किया करते थे। हाजी मोहम्मद हारून ने कहा कि चूँकि मुसलमान कसरत से ज़कात, सदका और फितरा अदा करते हैं, यही वजह है कि इस तरह के अफराद मसाजिद और दरगाहों के पास भीख मांगा करते हैं। मैं आपको क्या बताऊं, अभी खुद 3 दिन पहले मैंने मेरे मोहल्ले में हिंदू भाइयों का वीडियो बनाया जिनको मैं खुद रोज़ आना भीख देता हूं। उसमें एक हमारे ममता हॉस्पिटल के करीब बैठता है जिसका नाम है गालिबन कैलाश पवार। मैंने वीडियो बनाया, उसको भी मैं चैनल पे दिखाऊंगा भी इंशाल्लाह। और एक आगे एक औरत बैठती है जिसका नाम है जनाबाई, तो मैंने उनका खुद वीडियो लिया हूँ कि मैं खुद जानते हुए कि ये हिंदू है, हालांकि मुझे कई मरतबा मुसलमानों ने बताए, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, इस्लाम धर्म वो है जो मजबूर, जो भी आपसे मांग रहा है उसका ज़ात और धर्म मत देखो, भूखे को खिलाओ, नंगे को पहनाओ, मजबूर की मजबूरी देखो, उसका धर्म मत देखो। तो मैं खुद बरसों से बाकायदा हिंदू भाई बहनों को भीख दे रहा हूँ। तो ये जो मध्य प्रदेश का मामला है, ये भी हिंदू ही थे। आखिर गोदी मीडिया, आतंकी मीडिया और हिंदुत्वा टोला जो है, इनकी पोल खोल कर रख दी जमीयत उलमाए हिंद ने।
आइए नाज़रीन, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है रियासत आसाम से। जी हाँ, आसाम की आज से 5 दिन पहले भी हमने वीडियोस बताई थी। वहाँ से हमारे रिपोर्टर अब्दुल गफ्फार साहब ने सारी वीडियोस भेजी थी। आसाम में बारिश और सैलाब से काफ़ी तबाही मची है और अभी भी तबाही हो रही है। मरने वालों की तादाद 100 से ऊपर निकल गई है और बताया जा रहा है कि 50 लाख से ज़्यादा अफराद मुताअस्सिर हुए हैं इस ख़तरनाक बारिश और सैलाब और तूफ़ान से। इसलिए हम गुजारिश करते हैं कि आसाम के लिए हम लोग स्पेशली दुआएं भी करें और जहाँ तक हो सकता है अपने मजबूर और परेशान हाल भाइयों की मदद भी करें। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, हालांकि इंटरनेशनल न्यूज़ में भी उसकी तफसील बयान करूँगा, लेकिन नेशनल न्यूज़ में भी इसलिए ये बताना ज़रूरी है कि जिस अजीम शख्सियत का इंतकाल हुआ है वो सिर्फ़ बाहर मुल्कों के नहीं बल्कि हिंदुस्तान से लेकर पूरी दुनिया आलम इस्लाम के एक अजीम मुस्लिह में शेख थे, शेख महमूद आफंदी साहब, जिनका गुज़िश्ता कल 93 ईयर की उम्र में इंतकाल हुआ। और ख़बरें हैं कि आज बाद नमाज जुमा तुर्की की मस्जिद अल फतह में नमाज जनाजा अदा की जाएगी। इस्माइल आगा मस्जिद में फाउंडेशन फॉर साइंस एंड सर्विसेज के सोशल मीडिया अकाउंट से पर मौसूल होने वाले बयान में कहा गया है कि हमारे शेख महमूद आफंदी आखिरत की तरफ चल पड़े हैं। मेरी पूरी उम्मत मोहम्मदिया से ताज़ियत है। शेख की नमाज जनाजा मस्जिद अल फतह में बाद नमाज जुमा अदा की जाएगी। और मैं आपको बता दूं कि ये वो शख्सियत थी कि आलम इस्लाम के तमाम बड़े उलमा भी बाकायदा बड़ा ही अदब व एहतराम इनका करते थे। और मैंने ख़ुद तस्वीरों में देखा कि हज़रत पीर शेख ज़ुल्फ़िकार नक्शबंदी से लेकर हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी और तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब उर्दुगान सब हज़रत से बड़े ही अदब से मुलाकात करते हुए नज़र आ रहे हैं। अल्लाह ताला मरहूम की मग़फ़िरत फ़रमाएँ, उनके दर्जात को बुलंद फ़रमाएँ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके तमाम मुरीदीन मुतवस्सिलीन और उनसे तमाम जुड़े हुए लोगों को भी अल्लाह सब्र जमील अता फरमाएं, आमीन। आइए नाज़रीन, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, कांग्रेस ने खुलकर ये बात कही है कि क्या ईडी, वो जो ईडी है ना पूरी टीम, वो क्या सिर्फ अपोजिशन के लिए है? कांग्रेस ने मरकज़ी हुकूमत पर सीधा हमला बोलते हुए सवाल किया कि क्या ईडी अपोजिशन पार्टियों के लीडरों के लिए ही है? अडानी और बीजेपी से जुड़े लोगों से पूछताछ क्यों नहीं करती ईडी? कांग्रेस के तर्जुमान गौरव ने सहाफ़ियों से खिताब करते हुए कहा कि पिछले 2 हफ्तों में देखा गया है कि ईडी एक प्राइवेट इदारा बन चुका है हुकूमत का, जो सिर्फ हुकूमत के अपोजिशन के पास जा रहा है। और अब लोग ये भी कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में ये जो भागे हैं, बगावत किए हुए हैं और जो अब फिलहाल गुवाहाटी जाकर छुपे हुए हैं, ये तमाम के तमाम लोग बेचारे ईडी का शिकार हैं। और ईडी ही ने कमाल किया है जो इन तमाम को शिवसेना से निकालकर बीजेपी की गोद में बिठाने की तैयारी किया है। और इसमें कई लोग ऐसे हैं जो भागे हैं, इनमें से कई लोग ऐसे हैं जिनको बाकायदा ईडी की नोटिस से पहुंच चुकी है। तो अभी फिलहाल मुल्क में बीजेपी को जिसको भी दबाना है, खरीदना है या लेना है, गोदी में बिठाना है, तो ईडी से अच्छा कोई हथियार नहीं है। इसलिए कांग्रेस ने कहा कि ऐसा लगता है कि ईडी जो डिपार्टमेंट है वो सिर्फ अपोजिशन पार्टियों के लिए हुकूमत ने बनाया है। आइए नाज़रीन, इस वक्त मुंबई की बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि मुंबई में साबु सिद्दीक मुसाफिर खाना है। वहाँ के ज़िम्मेदार अलहाज बशीर पटेल साहब, अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे और अल्लाह ताला इनको खूब तंदुरुस्ती, सेहत, आफ़ियत के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन्हें नसीब फरमाए। साबु सिद्दीक मुसाफिर खाना, अभी फ़िलहाल लोग हज को जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि साबु सिद्दीक मुसाफिर खाना आज़मीन हज के लिए और उनके घर बार वालों के लिए मुंबई में किसी नेमत से कम नहीं है। जी हाँ, वहाँ पर जो लोग जाते हैं, वहाँ ठहर जाते हैं, तो
मुंबई में आप देखें कि खाना मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन रात गुजारने और सर छुपाने का सहारा मिल जाना ये बड़ा मुश्किल होता है। तो ऐसे वक्त में जब ख़ास तौर से हाजी जाते हैं तो उनके साथ, एक हाजी के साथ 10-10 लोग रहते हैं, उनके ख़ानदान के लोग मुंबई तक छोड़ने जाते हैं, तो बड़ी मुसीबतों और मुश्किलात का सामना होता है। लेकिन साबू सिद्दीक मुसाफिर खाना हाजियों और उनके घर वालों के लिए यूँ समझिए कि किसी नेमत से कम नहीं है। अलहाज बशीर पटेल साहब हमारे जमीयत उलमा के भी बड़े खैर खा है। इससे पहले मैं बाकायदा उनके ऑफिस में जाकर तफसीली मैंने उनसे मुलाकात भी किया था। उस वक़्त मुफ्ती इस्माइल साहब और हम दोनों साथ थे जब जमीयत उलमा का वहाँ उसी बिल्डिंग में प्रोग्राम हो रहा था। जमीयत उलमा के लिए भी हाजी बशीर पटेल साहब बड़ी खिदमत करते हैं। तो बस मैं ख़ास तौर से दुआओं के लिए भी ये खबर लगा रहा हूँ कि अल्लाह ताला अलहाज बशीर पटेल साहब और उनकी पूरी टीम को बेहतर बदला नसीब फरमाएँ और साबू सिद्दीक मुसाफिर खाना इसी तरीके से मुसाफिरों की खिदमत करता रहे। आइए उत्तर प्रदेश की एक बड़ी खबर फ़िलहाल मेरी निगाहों के सामने आ रही है कि उत्तर प्रदेश के रामपुर में गुज़िश्ता कल ज़िमनी इंतखाब था, इलेक्शन था, जिसमें आज़म खान साहब जो समाजवादी के कदआवर नेता है और मुस्लिम दबंग कदआवर लीडर है, जो योगी आदित्यनाथ की दुश्मनियों का शिकार होकर तकरीबन 2.5 साल जेल में रहकर आए हैं। गुज़िश्ता कल उन्होंने बीजेपी पर, योगी आदित्यनाथ पर और पुलिस पर ज़बरदस्त हमला किया। उन्होंने कहा है आज़म खान ने कि यूपी पुलिस बिल्कुल डर का खौफ का माहौल बना रही है और उन्होंने कहा कि हम पूरी रात जागे हैं, जबकि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार पार्लियामेंट के तमाम थानों में गए हैं। अगर वोट का फीसद गिरा तो इल्ज़ाम पूरी इंतज़ामिया पर आएगा। उन्होंने बीजेपी हुकूमत पर वार करते हुए, तंज करते हुए कहा कि हमसे बड़ा मुजरिम कौन है, इसलिए जो चाहो हमारे साथ करो। हम पर मुर्गी, बकरी, भैंस, किताब और फर्नीचर की चोरी का इल्ज़ाम है, तो हमारे शहर रामपुर को भी वैसा माना गया है, इसलिए जो चाहे करें, हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा। लेकिन खैर इतनी बात का तो इशारा मिल गया कि पूरी तरीके से ज़िमनी इलेक्शन में भी बीजेपी हर तरह की शरारत कर रही है। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने आ रही है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि एकनाथ शिंदे अब इनके साथ जो गए हैं, भागे हैं, या इससे पहले जो शिवसेना में आए थे, अब खबरें आ रही कि वो सब के सब शिवसेना में आए शिंदे के भरोसे पर। शिवसेना में जितने भी बीजेपी के कारकुन थे जो आए थे शिंदे के भरोसे पर, वो सब बेचारे बड़े कश्मकश में है कि करें तो क्या करें। एकनाथ शिंदे के फैसले पर अब सभी की नज़रें टिकी हुई है। थाने और मज़ाफ़ात में शिंदे की हिमायत के बैनर भी लगे हुए नज़र आ रहे हैं। वहीं पर दोनों तरफ से बैनरबाजी का सिलसिला शुरू हो गया है। कई इलाकों में बाकायदा शिवसेना उद्धव ठाकरे के समर्थकों ने, किसी ने बागी, किसी ने गद्दार, किसी ने बंडखोर, इतनी ख़तरनाक दोनों तरफ से बाकायदा बैनरबाजी का सिलसिला जारी है। वहीं पर शरद पवार का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि एकनाथ शिंदे के पीछे बीजेपी का हाथ है और ये भी कहा कि बागियों को मुंबई आना पड़ेगा और असम्बली को ये फैसला करने का हक है कि हुकूमत अक़लियत में है या नहीं। क्यों होता है जोड़ों में दर्द, क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न, क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन, क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ, क्यों थम सी जाती है जिंदगी। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें।